Honorable President of ICI, CA Nilesh Vikamse ji, and Shri Arjun Ram Meghwal ji, who is Member of Parliament and Union Minister of State for Finance and Ministry of Corporate Affairs, coming in. We welcome them. Please have a huge round of applause to welcome our chief guest. I request CA Nitish Kothari, Chairman of Vasai branch, to please escort our guest. Fresh हो जाएंगे, ठीक ठीक ठीक, sure. ठीक है. Request Nitish Kothari, Chairman, to please escort our guest, Member of Parliament Arjun Ram Meghwal ji, and Vimal Agarwal ji, past Chairman, to please escort Minister, and Vimal Agarwal ji to escort Nilesh Vikamse ji, President, sir. Good afternoon, members. So we are fortunate to have Minister, Member of Parliament, Shri Arjun Ram Meghwal ji, and Honorable President CA Nilesh Vikamse ji to Vasai branch of WIRC in GST conference. We welcome you, sir. Please have a huge round of applause. We welcome other dignitaries, CA Praful Chhajer ji, Central Council member, and CA Sunil ji Patodia, past chairman of WIRC. Sir, to quickly brief you about Vasai branch. Sir, Vasai branch extends from the geographical area wise. I'll explain to you that it comes from Borivali Mira Road till Dahanu Road. It caters to 2,500 plus chartered accountant members and 10,000 plus CA students. Sir, we have organized this GST conference for 2 days, which started yesterday and which will follow today. It is being attended by 550 plus chartered accountant members. Sir, just to inform you, maximum chartered accountants residing in this area, which is Mira Road and Bhinder, hails from Rajasthan, which is your very own and our own city. Sir, it is an inspiration for us members who present over here to have you. This we ensure that we will serve our country in a most beautiful manner and be a part of nation building as a part of ICI. On behalf of ICI members present here, dignitaries on the dais, off the dais, we offer a heartfelt welcome to the Union Minister Arjun Meghwal ji. I would request our branch chairman, CA Nitish Kothari ji, to offer a floral bouquet to Minister, sir. I would request CA Vimal Agarwal ji, immediate past chairman, to offer a floral bouquet to our president, CA Nilesh Vikamse ji. I would request CA Lalit Bajaj ji, branch nominee and regional council member, to offer a floral bouquet to central council member CA Praful Chhajer ji. I would request CA Xavier Rajan ji, secretary of Vasai branch of WIRC, to offer a floral bouquet to CA Sunil ji Patodia. Okay. Would request CA Nitish Kothari ji and our beloved honorable president CA Nilesh Vikamse ji to overdraw the shawl and offer a Shrifal to the guest for the day.
Now, sorry. Please, let's give a standing ovation to the Union Minister who has taken out his precious time to come and attend our Vasai branch GST conference. I would request entire Vasai branch committee and past chairmen of Vasai branch to please join us to offer a memento to our guest, Union Minister Shri Arjun Ram Meghwal ji. I would request CA Hemant Shah, Treasurer, Vasai branch of WIRC, to please come and quickly give a short brief about our guest. A very good afternoon to each one of you all. Arjun Ram Meghwal is a member of Parliament, Union Minister of State in Finance and Corporate Affairs. He has been elected to the 15th and 16th Lok Sabha term from Bikaner constituency. He was born into family of weavers in the village of Bikaner district. He began his career as a telephone operator while pursuing his LLB and got into Rajasthan Civil Services. Later, from his services, he was promoted to an Indian Administrative Services. A two-time MP, a 16-year-old, was first elected in Lok Sabha in 2009 from Bihar constituency. He is an retired IAS, Masters in Art in Political Science, LLB, MBA educated at Sri Dungar College, Bikaner and University of Philippines. Recently, his speech at Jabalpur, it concluded that GST will ease the programs of our nation. With these few words, I welcome our Honorable Member of Parliament with big round of applause. I would also like to formally welcome you, which no one needs an introduction, but still our favorite President, C.A. Nilesh Shivji Vikamsi, a recently elected President of our Institute of Chartered Accountants of India. I request each and every member to be welcome him with big round of applause. The chief guest of this program, very, very respected, honorable Minister of State for Finance, Arjun Ram Meghwal ji. Friends, his love for he's a friend, philosopher and guide for the profession. He's like a father figure, like an elder brother. And I'll tell you the reason why. He has been teaching our GMCS classes in Bikaner earlier, before he became member of parliament. Now he's become very busy, so he cannot, but otherwise his love for the profession, he's been teaching our students who are becoming CAs. That is his starting, Second, his affection for the profession can just be depicted. Yesterday, coincidentally, I was traveling with him on a flight from Jaipur to Bombay. I was there in Jaipur for a district committee and some other work in Jaipur. And coincidentally, he was also traveling to Mumbai. He had a program in Bombay. And I just requested him, sir, what is your schedule in Bombay today? And he mentioned that he's occupied till 1:32. There was some program of the revival of Bombay Mercantile Cooperative Bank, and where he had played a very stellar role to see the revival of the bank. And so they had requested him to, and plus a program on digital banking, what's happening in the banking sector on the digital side. And then says, when are you leaving back for, he's going to Chennai for some other work. This is at around 6 o'clock. So in this couple of hours which you have, can you address our members who are attending this GST conference in Mira Road? So first, of course, not only he, even I was skeptical, how will we manage the time? The time is, coming to Mira Road, and with all this metro work which is going on, it's a challenge. But his love for the profession overcame that challenge of the traffic and the distance, and he's here with us. He has been very, very helpful to the profession. I told you a couple of incidences, some more. If you remember, under Companies Act, we have got NFRA coming up, which we believe is not required because
We are under an act of parliament. We ourselves are a regulator apart from all the other activities which we do. We've got a lot of government oversight within our function. We've got 8 government nominees on the council. In the disciplinary committee, we have got out of 5, 2 people are government nominees. In the board of discipline, out of 3, 1 is a government nominee. We have got a quality review board which was set up in 2006, functional from 2012-13, where 6 members are from government, 5 are from the council, and the chairman is from the government. So that all these have to be, made more functional. We say we are willing to change, assuming there's some improvements required. We are willing to improve ourselves. But a different set of regulators, typically as it happens, one regulator, another regulator, it will only, in our view, it will not serve any purpose. Existing systems need to be strengthened. And whenever any issue is there, whenever we go to the, to Meghwal Saab, always there's a positive response. For example, currently the CRET, in the last few years we've been working on the CRET, the new course curriculum. So it has gone back and forth because of some small technical procedural reasons, and that is also on the final legs now. We are expecting approval anytime, and from 1st July, we expect that we'll roll out the new CRET curriculum. 1st July will be the subject to receipt of the government approval, 1st July, and if possible, we'll request the Honorable Prime Minister to launch that course if he can get his time on 1st July, along with all our ministers, Meghwal ji, Arun Jaitley ji, Santosh Gangwar ji, Suresh Prabhu ji, Piyush Goyal ji, if we get all of them, so it'll be a huge new course which is going to come up. So we'll try to see if we get them. Meghwal ji is helping us on the bank autonomy matter also. As you're aware, we are fighting with the Reserve Bank and Ministry, saying that the appointment of public sector bank auditors should be done by separate bodies. So in that respect, recently only, after a lot of efforts, thanks to the efforts of Praful Bhai Chhajar, who's present here as the PDC chairman last year, the Reserve Bank has agreed that the appointment should be done through a software, centralized, no regional, no ad hocism, no arbitrariness, where a human involvement is there, whatever malpractices are happening because of the ad hocism. So Reserve Bank has agreed to that. It has given an advisory to the banks that this appointment should be done centrally using software. And we have offered, ICAI has offered that we can develop the software for the banking system so that there's no bias involved and no malpractices can creep in. So that's there also. Meghwal ji has helped a lot, supported a lot. Just quickly on the GST, couple of things. I will not speak on technical. I'm not a technical expert on GST. You've got a lot of people to speak on GST. Only one thing I want to draw your attention is this is a federal law. First time in Indian history in last, I would say, 7 decades almost, a taxation law is going to be implemented jointly by our central and the state governments. Now you can understand how difficult it would have been to just get it going. And you've seen how it has evolved over the last few months. From the time the constitutional amendment happened, the constitutional bill, one central government, 29 state governments, 2 union territories, 32 people coming together and different interest levels. I am a manufacturing state, I am a supplying state, I am a consuming state, different interests for the revenue share. So there will be a lot of sacrifices at all the ends, whether it's the central government, whether it's the state governments, and how all these sacrifices have come. So this is the best possible law under the given circumstances of our system at this point of time. It may not have been an ideal law, but one has to look at the ground reality of the state and the, for me, it is a very, big move. Once this is implemented, once the confidence between the center and the states improve as far as revenue share is concerned, then we can get into the ideal GST law. Right now it is state, it is just to bring in the confidence, all these matters have happened. The moment that confidence improves in the next few years, where the central government has also promised a lot of things to the state government. So this federal system of working, this is only one of the aspects, GST. You can understand what more can be achieved out of this, the way the whole process has worked. And I think it's a good learning for all of us, whether in our families, whether in our organizations, we have difference of issues. But if the common goal is there, I think the difference of issues can be all sorted out with some adjustment sacrificed by the parties involved. So I think that is the learning which I want you to look at it from that learning perspective. There will be issues, but let's have a larger interest in mind and how do we work towards a common goal. Having said that, I think many of us are from industry, many of us are representing the small and the medium entrepreneurs, traders, suppliers. To them, the request and the suggestion is please get your act together. I think there has generally been a tendency to cut corners as well as cost is concerned
when a cost of compliance comes up, we have been used to with part-time accountants and so on and so forth. This law may require some more effort as far as cost is concerned, maybe hiring of people, whether it is BCom, whatever it may be, from uploading of invoices for the credit, etc., whatever that the experts will tell you how it has to be done. But let them not advise to the small and medium entrepreneurs we have to give is, please organize. If you organize yourself, your business is going to grow. And if you're going to keep on cribbing that my cost is going to go up, my this, that, so many compliance thing, he'll keep on crying and his business is going to go down. I think that's a very clear message, I think, which we need to send. Crying will not help. The government wants more financial discipline in the system, and we all need to support that. So that whole mindset over the last so many decades of cutting corners on costs as far as compliance is concerned, I think that has to be removed. And we as the rightful, I would say, ambassadors, we have to convince them, we have to explain them, and it will be benefit for them. In the moment they organize, those who are going to be organized, my belief is that turnover is going to just zoom. And those who are not going to organize, they're going to go down the drain because nobody is going to trade with them. Today, if I'm consuming something, I'm not going to get a credit. If my supplier is not organized, I'm going to go to another person. I'm not going to go to other person who's... So that message has to go down to the, our people. And just one small message for all of us. The way the government is going to harness technology for this perspective, the GSTN and the whole thing, it's a mammoth task. I think we as professionals also now need to be more, on the technology side. We are slightly away from, I'm not saying exactly away. We are using technology, but we need to harness it more. Today, there's a machine called Watson in IBM has come out with. It can do medical surgeries. It can do 90% of the legal work. Accounting comes after that. So medical, legal, and then comes accounting. So it can do all these things. What we are doing sooner or later, I think, so we'll need to start harnessing. Number one, be aware of the problem that technology is going to do a lot of roles and functions which we are doing. How do we harness this technology better for our own benefit? I won't take time. All of us are eager to listen to Honorable Minister of State for Finance, Arjun Ram Meghwalji, who is our very, very dear friend, philosopher and guide for the profession. Thank you. And thank you, sir, for sparing a very, very valuable time. And despite all difficulties coming here, on behalf of all the members present here, I really thank you from the bottom of my heart. Thank you. Thank you, sir, for your address. Now I would request our chief guest, Shri Arjun Ram Meghwalji, Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs. Sir, please. दो दिन से बैठे हो क्या आप? हैं? भाई जी मारे एरिया कितना लोग बैठे हैं? कैसा है? नहीं हूँ बोलूँ जिकी जानो जिकत कितना लोग है एरिया खासा है जन तो आज बैठा हूँ अच्छा मुकेश जी भी बैठे हैं देखिए बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस मुझे लग रही है क्योंकि जीएसटी पे मैं कई कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहता हूँ लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सीए एक जगह इकट्ठे हुए मुझे लगता है ये पहली कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा हूँ इतनी बड़ी एक आपकी बड़ी हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस थी वो जीएसटी पे नहीं थी एक हैदराबाद में आपने कुछ कॉन्फ्रेंस नीलेश जी लाए थे वो कुछ और था लेकिन खाली जीएसटी पे बड़ी कॉन्फ्रेंस है आपके लेकिन आप क्या ऑल ओवर इंडिया से आए हो या यहीं से हो सारे मैं इंटरेक्शन से भाषण करूंगा मैं देसी आदमी हूं भाई जी देसी ढंग से बात करूंगा आपसे सारे महाराष्ट्र बॉम्बे या बाहर से भी हो गुजरात से भी हैं क्या गुजरात से कितने लोग हैं थोड़े लोग हैं अच्छा यूपी लखनऊ नासिक कोल्हापुर अधिकतर इसका मतलब महाराष्ट्र अधिकतर लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर से भी लोग आए साउथ से हैं साउथ से एक वो खड़े हैं वो हाथ दिखा रहे हैं भी है रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीएसटी और क्या कहूँ मैं उसको मैं यहाँ आमंत्रित नहीं था
लेकिन देखिए, आपके सीए इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं, आप कितने लकी हो कि वो आपकी कितनी चिंता करते हैं। मैं प्लेन में बैठा तो मेरे पड़ोस में कोई आदमी बैठे थे, उनसे वो ये जो आती है ना महिलाएं पिलाती है, क्या पिलाती है प्लेन में बैठते ही, भाई जी जाना कौन है, अब देसी आदमी, अब नाम ही ढंगू जाना कौन कहीं है कहता। तो मैं कहता कोई पिलाने के चक्कर में कोई गिर गया कोई, तो वो सीट खराब हो गई, मैं इधर खड़ा हो गया, क्यों यही वजह से। मैंने कहा नीलेश जी आप क्या कर रहे हो यहाँ के, मैं मुंबई जा रहा हूँ, आप मैम जयपुर से बैठे थे, ये भी कल जयपुर थे, जयपुर शायद आप सीए चैप्टर के प्रोग्राम में गए थे। तो इन्होंने तब से मुझे देखा, तब से पकड़ लिया कि आप मुंबई क्यों जा रहे हो। मैंने कहा एक बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का एक बड़ा प्रोग्राम है, उसमें जा रहा हूँ, नकवी साहब भी आ रहे हैं, मैं भी, और शायद 2 बजे तक फ्री हूँगा, फिर मुझे चेन्नई जाना है। उन्होंने कहा नहीं एक मीरा भाईंदर में, मीरा भाईंदर सुनते ही मैंने कहा वो मीरा भाईंदर तो बहुत दूर है भाई जी, वहाँ कहाँ ले जाओगे, वहाँ तो संभव नहीं है। और पहले आया था तो यहाँ मेट्रो का काम चल रहा था, तो हम ट्रैफिक में फंस गए थे। मैंने कहा प्लेन भी छूट जाएगी, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा नहीं छूटेगी। और लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी इंस्टीट्यूट का हेड कोई अपॉर्चुनिटी इनको दिखी, कुछ मैंने भी बहुत विरोध नहीं किया, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, इसने कह दिया होगा कि भाई पता नहीं कहाँ नहीं जा पाएंगे, हमारे राजेश जी हैं, इसने भी कह दिया होगा संभव नहीं है। अपॉर्चुनिटी इनको दिखी तो इन्होंने सुबह फिर फोन किया, और अभी वो होटल में ही पहुंच गए मुझे लेने के लिए कि मैं तो लेके ही जाऊंगा। तो ऐसे आपके प्रेसिडेंट की मैं बहुत बहुत खाली बड़ाई नहीं कर रहा हूं भाई साहब कि ये मेरे सामने बैठा इसलिए बड़ाई कर रहा हूं। ये शो करता है कि अपने इंस्टीट्यूट के प्रति कोई आदमी कितना डिवोटेड है। तो जो डिवोशन की भावना मैंने इसमें देखी नीलेश जी में, इसलिए नीलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों के मेरे दर्शन आपने करा दिए। मेरा ही महकमा है भाई, कॉर्पोरेट अफेयर्स का ही है ना मामला तो, और जीएसटी भी हमारा ही है, तो दोनों मिक्स में आपने इतने दर्शन करा दिए इतने चार्टेड अकाउंटेंट के, जो भारत का भविष्य है। और आने वाले 2-3 सालों में जो हम ट्रांजिशनल फेज में चलेंगे, तो इनके कंधों पे ही अधिकतर भार रहने वाला है समझाने का। रिटर्न कैसे भरेंगे, ये गड़बड़ हो गई भाई साहब कैसे ठीक करेंगे, क्रेडिट इनपुट कैसे मिलेगा, ये चेक पोस्ट में हमारा ट्रक खड़ा हो गया, आप तो कह रहे थे पहले खड़ा नहीं होगा, क्या चक्कर हुआ, कहां फंस गए। तो इनमें अधिकतर मदद यही लोग करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं हमारे प्रफुल्ल चाजेड़ साहब, जो सीसीएमएन मेंबर इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के हैं, हमारे नितेश जी कोठारी साहब जो चेयरमैन हैं WIRC ब्रांच के हैं, ये चेयरमैन वर्षाई ब्रांच के, और CA विमल अग्रवाल जी हैं, सुनील पाटोदिया जी, झुंझुनूरा कहीं भाई जी सुनील जी थे, हाँ झुंझुनूरा, पास्ट प्रेसिडेंट है तो पहला, हाँ है ना, काकोनिया पास्ट ही है नहीं, तो पण ये प्रेसिडेंट पास्ट रहे होंगे, लेकिन मंच में वर्तमान में बैठे, चिंता मत करो आप। हमारे CA सुमित दोषी जी, CA राजन साहब, हेमंत शाह जी, ललित बजाज साहब, मुकेश शर्मा जी, भंवर बोराना जी, अंकित राठी जी। और इसमें 2 दिन से आप भाग ले रहे हैं। मैं देखिए थोड़ा अलग एक कहानी कहूँगा, क्योंकि आपने जिक्र मुझे कर दिया कि हम CA को पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मैं क्या पढ़ाता था बीकानेर में, पता है आपको किसी को? मैं CA को पढ़ाता था इथिक्स। बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है ना, टिपिकल है, हाँ बहुत टिपिकल है। नहीं इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो एक भूत है NFRA वो आ जाएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। एथिक्स को रखना पड़े। NFRA समझते हो क्या है? क्या है? दिख रहा है ना आजकल आपको आता हुआ थोड़ा थोड़ा। इनको पता नहीं नीलेश जी, इनको ज्यादा पता नहीं ना, कुछ कुछ को पता है। सर नीलेश भाई अपने तक ही रोक लेते, मेंबर तक नहीं जानते। सारे भूत अपने तक पकड़ लेते हैं।
ये चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा अपने को। उसके लिए हमारा इंटरनल इथिक्स का सिस्टम अच्छा होना पड़ेगा। देखिए, 2-3 चीजें मैं जीएसटी पे कहूंगा। अजय, ये तो सब मानते हो जीएसटी अच्छा है और आना चाहिए, ये तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आना चाहिए तो फिर मन में ये तय करो कि जो भी जीएसटी के बारे में कंफ्यूजन के क्वेश्चन पूछेगा उसको हम दूर करेंगे, ये मन में तय करो। उसके लिए हमारा एक तो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, है बुक वो आपके पास? आज बांटी है क्या यहां, या साइट पे देखते हो खाली? साइट वाली क्या होती है कि वो देखते देखते फिर निकल जाती है, उसको टेबल पे रखना पड़ेगा सब। या साइट पे जो देखते हो उसका आप उसको प्रिंट आउट ले लो और लेकर के एक बार टेबल पे भी रखो उसको। बहुत से ऐसे उसमें क्वेश्चन हैं जो डाउट को दूर करते हैं। और दूसरा एक बड़ा विषय है, रूल्स बन रहे हैं हमारे अभी। 18-19 को जीएसटी की काउंसिल की बैठक है श्रीनगर में। रूल्स हमने अपलोड कर दिए हैं। रूल्स कितने लोगों ने देखे हैं? देखे हैं या नहीं देखे हैं? तो जरूरी है देखना इनको। आप रूल्स की कॉपी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ले ली क्या? तो उसमें जिसको भी लगता है कि इस रूल्स में ये अमेंडमेंट हो तो ठीक रहेगा, इसमें ये अब बात जुड़ जाए जिसको प्रोविजो अपन बोलते हैं तो ठीक रहेगा, या इसके करने की क्या आवश्यकता है, इसके बिना भी ठीक रहेगा, या इसकी बदले में ये रूल्स या रूल्स की ये लैंग्वेज आए तो ठीक रहेगा। अब आज मैं यहां खड़ा हूं, तारीख हो गई है 14, क्यों? ठीक है। और आप अब इस कॉन्फ्रेंस के समापन की ओर बढ़ रहे हो। समापन होने वाला थोड़ी देर में, यही है। इसके बाद भी कोई पढ़ाएगा थोड़ा, या समापन ही है? खाना खा लिया क्या? खाने के बाद एक टी ब्रेक और होता है समापन में, तो टी है, ये कंटिन्यू कर लेना। लेकिन आज आप 14 तारीख में बैठे हो, 2 दिन आपने जीएसटी पे सुना है, पढ़ा है। 15, 16, 17 आपके पास 3 दिन है। 18-19 को जीएसटी काउंसिल श्रीनगर में बैठेगी। आप 3 दिनों में रूल्स का अध्ययन करके जितने फीडबैक हमें भेज सकते हो, मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी सफलता होगी। आप भेजना, और जब हम वहां उसमें हमारे जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं जो इसको देख रहे हैं, हंसमुख आडिया जी से लेकर के बीएन शर्मा, आलोक शुक्ला, जो भी देख रहे हैं इसको, उनको कहेंगे भाई ये बॉम्बे से आया है और मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया हूं, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में आपके पास फीडबैक आया रूल्स पे। भेजोगे क्या? नहीं, आप पढ़ोगे तब भेजोगे ना। पढ़ोगे तब देखोगे कि यार इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, तब भेजोगे। और बहुत जरूरी है, बहुत ठीक समय पे आप ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, बहुत जरूरी। देखिए, हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन को इसका जिम्मा दिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरीज एसोसिएशन की जो इंस्टीट्यूट है, और हमने एक दिया सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं आजकल कॉस्ट अकाउंटेंट। ये तीनों बड़ी हमारे इंस्टीट्यूट है और हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से जुड़ी हुई है। और भी टेक्निकल आपके इंस्टीट्यूट हैं जो मांग रही है कि काम हमें दो, हम नहीं दे पा रहे हैं उनको ये काम। अभी हमने कहा हम इन 3 संस्थाओं से ही इस काम को कराएंगे। जीएसटी की टेक्निकल दिक्कत क्या आती है उसको समझने का, समझाने का, ट्रेडर्स को समझाने का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको समझाने का, सर्विस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको समझाने का। बड़े कई कंफ्यूजन ऐसे हैं जिनको होते भी नहीं है तो अभी कह देते हैं कि ये कंफ्यूजन है। जैसे ये जबलपुर में आपने जिक्र किया, जबलपुर में एक महाकौशल चैम्बर है, महाकौशल एरिया है जबलपुर के आसपास, जिसमें 9 जिले लगते हैं।
जबलपुर के आसपास के, उनका बड़ा चैम्बर है, उनका एक मेला लगा हुआ था। मुझे कहा जी आप जीएसटी पे कुछ इनसे बात करूं, तो मैं खाली मेला देखने गया था। अब जो भी आदमी आवे वो कह रहे जीएसटी तो साहब ये गड़बड़ हो जाएगी, इतनी रिटर्न है जी, इसमें तो गांव का आदमी तो परेशान ही हो जाएगा जी। तो मैंने कहा आपको आइडिया है क्या, क्यों परेशान होगा गांव का आदमी? तो कई लोगों को तो यही पता नहीं है 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट भी है, इसलिए समझाना जरूरी है। मैं कह रहा हूं ऐसे ही बोलना है, ये मंत्री दिख गया सामने इसलिए बोलना है कुछ न कुछ। मैंने कहा जी आपको 50 लाख तक भी कोई तकलीफ नहीं आने की। बोला क्या, क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा कंपोजिशन स्कीम है भाई, 20 लाख तक का जो डीलर है, हाँ हम इसकी सीमा बढ़ा सकते थे लेकिन वो समय निकल गया। हम कोई 20 लाख थोड़ी चाह रहे थे, थोड़ी ज्यादा चाह रहे थे, लेकिन राजी नहीं हो रहे थे। हमें ये फेडरल स्ट्रक्चर में काम करना है। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें दी हुई है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंस लिस्ट है। जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कर लगा सकती है, और जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उसमें स्टेट्स राजस्थान कोई भी सरकार राज्यों की वो कानून बना सकती है, वो कर लगा सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन सेंटर का बनाया हुआ कानून और कर प्रभावी होता है। ये सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल स्ट्रक्चर में हम जी रहे थे, इसलिए राज्यों की सहमति से हमने एक जीएसटी काउंसिल नाम का एक नया, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द पढ़ा है क्या? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये नया शब्द चल जरूर रहा था लेकिन किसी ने प्रैक्टिकल नहीं किया। ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें राज्यों ने कुछ अपने अधिकार छोड़े, केंद्र ने अपने कुछ अधिकार छोड़े, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक फॉर्मूला बनाया कि आने वाले समय में जीएसटी के रूल्स में बदलाव, जीएसटी की दरों में तय करना, या दर तय होगी तो उसमें अमेंडमेंट करना, ये आने वाले समय में राज्य के विधानसभाओं का और लोकसभा राज्यसभा का काम नहीं होकर के ये जीएसटी काउंसिल का काम। कितना बड़ा बदलाव है भाई साहब ये। जीएसटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन उसके साथ हमने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे बिजनेस करना आसान हो और जो आप फीडबैक दो उसके अनुसार रूल्स में प्रावधान करना आसान हो, इसलिए किया है। कोई हम इसमें कोई राजनीति कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सारे राज्य माने हैं ना, इसमें सभी राज्यों ने इसको स्वीकार किया है। ऐसे थोड़ी मान जाते राज्य, राज्यों के हितों का भी ध्यान रखा और केंद्र ने भी अपनी बात कही। लेकिन मोटा मोटी मैं क्या कह रहा हूं आपको समझाने का, एक इसमें जीएसटी में सरल भाषा में, कोई थोड़ा साहित्य या आपकी भाषा ऐसी हो जैसे हर आदमी समझे भी जीएसटी खराब इशू नहीं है, ठीक इशू है, आएगा तो ठीक रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं साहब 36 रिटर्न है, कैसे भरेंगे? रिटर्न 36 नहीं है, मैंने कहा 37 है। लेकिन उनको यही पता नहीं है, बस किसी ने कह दिया तो आलोचना करने लग जाते हैं। ठीक है, आपको 10 तारीख को एक रिटर्न भरनी पड़ेगी, रिटर्न का मतलब सूचना देनी है उसमें। उसके बाद की जो 2 रिटर्न है वो ऑटोमेट जनरेट होगी, आपको किसने कहा भरने की है? हां, जो लोग अभी 2 नंबर का धंधा कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम जीएसटी रीजन में भी उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई साहब, नहीं कर पाएंगे। आप में से कई पूछ रहे होंगे भाई ऐसे कैसे होगा, क्या पता चलेगा? अभी मुझे बताओ, डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को हुआ ना? उसके बाद मोदी जी ने बोला कि 2.5 लाख तक आप जमा कराएंगे नगद, तो हम नहीं पूछेंगे, कहा था ना। उसके बाद ज्यादा जमा कराएंगे तो पूछ भी सकते हैं, तो कई लोगों ने पूछा मोदी जी ने कहीं ठा पड़े, कराधान ज्यादा कहीं हुए। पता चला कि नहीं चला भाई साहब? चला क्या? सिस्टम ने जनरेट किया, 18 लाख लोगों का पता चला हमें, ये सिस्टम ने जनरेट किया। और उसके बाद हमने खाली एक एसएमएस डाला कि भाई ये पैसे आपने थोड़े ज्यादा जमा कराए हैं हमारी लिमिट से, आपने कैसे जमा कराए बता दीजिए। तो उन्होंने देखा अब नहीं बताएंगे तो क्या पता चलेगा। 7 लाख लोगों ने एसएमएस का जवाब दिया, बाकियों ने नहीं दिया तो कुछ थोड़ा बहुत नोटिस आए होंगे कुछ। तो आप ये भूल जाइए कि इसका पता कैसे चलेगा।
कि मैं टैक्स नहीं चुकाता हूं, जीएसटी नहीं चुकाता हूं, तो पता कैसे चलेगा? देखिए, अपन ऐसे समय में जीएसटी को लागू कर रहे हैं जब देश के और दुनिया की नजरें भी भारत की ओर, कि भारत बहुत तरक्की करने वाला राष्ट्र बन रहा है, इस समय में हम कर रहे हैं। बाकी कर, आप जानते हैं कि जब से सभ्यता चली है तब से कर है। एक तो आदमी पे कर लगता है, क्या है? आप पे कौन सा कर लगता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये आदमी पे लगता है। और एक जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आदमी पे नहीं लगता। देखो, मेरी समझाने की भाषा अलग है, थोड़ा बुरा मत मानना। अब मैं ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेरे को आता नहीं ज्यादा। ये वस्तुओं पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। जैसे मैंने कोई चीज मैन्युफैक्चरर की तो वहां इनडायरेक्ट टैक्स एक्साइज आ गया, ठीक है। उसी चीज में मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया तो क्या आ गया? वेट आ गया। और उसी में ही कोई सर्विसेज मैंने ली तो क्या आ गया? सर्विस टैक्स आ गया। उसी में कोई इंटरटेनमेंट जुड़ गया तो इंटरटेनमेंट टैक्स आ गया। वही वस्तु किसी राज्य से क्रॉस होने लगी तो एंटी टैक्स आ गया। भाई साहब, कितने तरह का टैक्स था। इसलिए ये जो करों का जो मकड़ जाल था इनडायरेक्ट, अलग अलग राज्य ने अलग अलग अपना लगा रखा था। मैं एक उदाहरण कई जगह देता हूं। मैं 2009 में चुनाव लड़ रहा था बीकानेर से। बीकानेर राजस्थान में, भाई साहब ध्यान है ना? हाँ, बीकानेर क्यों फेमस है पता है? भुजिया, रसगुल्ला, मतलब मीठा भी है नमकीन, दोनों चीजें हैं उसमें। तो एक आदमी मेरे पास आया रात को 11-12 बजे के आसपास, मैं थोड़ा फ्री को आया। बोला, एक ट्रक जो है मेरा रतलाम के आसपास पकड़ा गया है, आप छुड़वा दो ना। मैंने कहा, यार क्या है ट्रक में माल? कोई उल्टा सीधा माल तो नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं उल्टा सीधा कुछ नहीं, रोज ही भेजते हैं, लेकिन हमेशा हम जोधपुर होकर के भेजते हैं, और इस बार हमने उदयपुर के भेज दिया। तो मैंने, यार जोधपुर के भेज देते, उदयपुर के क्यों भेजा? क्या था ऐसा? उन्होंने कहा, जी जो मैं आइटम भेज रहा हूं उसमें राजस्थान में भी टैक्स नहीं है और गुजरात में भी टैक्स नहीं है, तो मैं भेजता ही रहता हूं। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार यह हुआ कि मैंने सोचा उदयपुर से कोई माल मुझे थोड़ा इस ट्रक में और डालना है। जो भी वाजिब माल था, कोई ऐसा गैर वाजिब माल कुछ नहीं था। तो मैंने देखा ये भी ले लेगा और उधर से निकल जाएगा। और जैसे ही वो उदयपुर क्रॉस किया, आगे रतलाम आया, उन्होंने कहा, कहां से आए हो जी? बोला, ये तो हमारे मध्य प्रदेश में इस पे टैक्स है। उसने कहा, जी हम सीए से पूछ लेते हैं। सीए ने कहा कि टैक्स है ही नहीं। सीए से पूछा, सीए ने कहा, जी इस आइटम पे कहीं टैक्स नहीं है। तो नहीं, ये तो रोक रहे हैं साहब। तो कभी क्या करें? रोक दो। रोक दिया। एक दिन रुका रहा, 2 दिन रुका रहा। मैंने वहां से फोन किया। मैं स्टेट में आईएएस रहा हुआ था, तो मैंने जिला कलेक्टर को फोन किया। मैंने कहा, ये ट्रक क्यों रोका भैया आपने? कहनी साहब यहाँ 2% टैक्स है। तो मैंने कहा, क्यों रोका? क्या तो जो यहाँ टैक्स नहीं है, गुजरात जा तो गुजरात में रहा है ना। कि नहीं, इनका मन बदल जाए और ये माल अगर मध्य प्रदेश में बेच दे तो। कैसी परिस्थितियों में देश गुजर रहा था जी टैक्स के मामले में। मैंने कहा, नहीं मान लो आपका कह रहे हो मन बदल जाए तो, और भाई नहीं बदलेगा, मैं कह रहा हूं ना। क्या बोला, आपकी बात में क्या विश्वास करें, हमारा सीटीओ नहीं मान रहा। तो मैंने कहा, आप सीटीओ को बुला के समझाइए, मैं कह रहा हूं। लेकिन नहीं, 2009 में तो शासन किसी और का था। उन्होंने देखा ये कौन आदमी आ गया, क्या तंग कर रहा है। 3-4 दिन ट्रक खड़ा रहा। उसके बाद आप सब जानते हो, ट्रक को सेल टैक्स में ऑफिस में ले जाके खड़ा कर देते हैं, ध्यान है ना आपको? वहां कोई सीसीटी बोलते हैं जिसको, कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्सेस का कोई आदमी सीसीटी होता है। उसने उसको सीज करके वहीं खड़ा कर दिया। माल सही थी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा, तुम यार छुड़ा ले। कि साहब पेनल्टी इतनी मांग रहे हैं जितना माल ही नहीं है। तो मैं, माल कितना है तेरा? कि माल तो मेरा कोई 17-80 हजार का ही है, तो पेनल्टी के 2.5 लाख मांग रहे हैं। तो मैंने कहा, तू जोरदार, अभी अब क्या करें? मैंने कहा, 60-70 हजार का क्या माल भरा है इसने? तो हमारी श्री कोलायत में एक मिट्टी होती है, चाइना क्ले, वो गुजरात में कहीं जाती है कोई प्रोसेस होने के लिए। तो मैंने कहा, यार इतना ही माल था, अब 2.5 लाख। अब वो कई दिन नहीं देवे, तो उसका 15 दिन निकल गए। अब वो ट्रक वाला चिल्लाया, वो मेरे पास आया।
कि मेरा ट्रक तो छुड़ाओ, माल तो जाने दो, मेरा ट्रक तो छुड़ाओ। मैंने उससे फिर बात की, तब तक हमारा चुनाव हो गया था, थोड़े हम फ्री हो गए थे। जो हमारे चुनाव वहां से बीजेपी का लड़ रहा था उसको कहा, मैंने कहा तू जा भाई, कैसे करके ट्रक छुड़ा। वो ट्रक भाई रोज की ट्रक में तो इनकम होती है ना, उसके बैंक के पैसे चढ़ जाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, तो वो भर नहीं पाएगा, तो ट्रक और खराब हो जाएगा। और माल वाला क्या कह रहा है कि माल छोड़ दो भाई, मैं तो नहीं उठाता। कितनी दादागिरी जी, किसी तरह का सिस्टम हमको समझ में नहीं आया। फिर मैंने शिवराज सिंह जी चौहान साहब को फोन किया, मैंने कहा साहब ये क्या है, बोला ये ऐसा इतना हो गया। मैं ये हो गया तो पता लगाया, उन्होंने कहा यार इसमें तो टैक्स था ना, आइटम में टैक्स था, तो फिर अब इस कुछ तो छोड़ो, कुछ तो करो, उसको जो भी करना है आपको। तो उन्होंने जब डंडा मारा, नहीं तो वो कई महीने तक उस ट्रक को भी खराब करते रहते। मतलब पैसा अलग से लेते, भ्रष्टाचार अलग, सब चीजें अलग, लेकिन पेनल्टी लगी जो सीसीटी ने लगाई, वो कितनी लगाई पता है आपको? 2.5 लाख की पेनल्टी लगाई, और वो भरनी पड़ी उसको। तो क्या आप चाहते हो ऐसे सिस्टम में काम करना देश में? कितना करों का मक्कड़ जाल, ये 2009 की बात कर रहा हूं मैं, कितना मक्कड़ जाल। मतलब हमारे जिसने भेजा था वो भी टेक्निकल आदमी था, उसका सीए था, वो भी ठीक है ग्रामीण क्षेत्र का था, जानता था, लेकिन उसको भी पता नहीं था मध्य प्रदेश में इस आइटम पे टैक्स है क्या। वो आइटम माइनिंग का था, उसकी लैंग्वेज भी ऐसी थी जो उसको समझ में भी नहीं आता था ये क्या है। उन्होंने कहा ये क्या है, इसमें तो इंटरप्रिटेशन का मामला है। ये अलग एक इंटरप्रिटेशन, ये बीमारी और है एक इंटरप्रिटेशन की, पता है ना। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए जीएसटी आवश्यक है। ये आपको देसी भाषा में लोगों को समझाना है, ये आपका काम है। 20 लाख तक थ्रेशोल्ड लिमिट है, 50 लाख तक कंपोजिशन स्कीम है, जिसमें जिस डीलर की टर्नओवर 50 लाख तक है उसमें ट्रेड करेगा 50 लाख तक 1% जीएसटी है, ध्यान है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करेगा उस पर 2% जीएसटी है, और अगर कोई रेस्टोरेंट का आदमी है तो उस पर क्या कितनी है, और 2.5 कैसे बोले? हाँ वो आधा आधा अलग है, तो 5 नहीं भाई, सही बताना, आप गड़बड़ मत कर देना। वो 50-50 वाला अलग है, ये समझाने का विषय है। उसके ऊपर कुछ डीलर ये कह रहे हैं हम स्टेट में जाएंगे सेंटर में जाएंगे, ये कंफ्यूजन है, ठीक है ना, ये आपके मन में भी रहता है। आप उनको समझाइए कि आपका 1.5 लाख तक का अगर टर्नओवर है तो उसमें 90% डीलर स्टेट के पास रहने वाले हैं, 10% ही सेंटर के पास आएंगे। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ये 10% कौन से आएंगे जी, और 90% स्टेट के पास कौन से जाएंगे, ये पूछते हैं ना। ये एक फॉर्मूला हम इजाद कर रहे हैं। आपके पास भी कोई अच्छा फॉर्मूला हो कि रोटेशन से आ सकते हैं क्या, या एक साल हम 10% हम सेंटर के पास रखें, दूसरे साल 10% दूसरे रखें, या अल्फाबेट से आ सकते हैं क्या, या और कोई फॉर्मूला है जिससे अनरेस्ट नहीं हो और इजीली सिस्टम जब चेंज हो तो स्विच और हो जाए। ये बड़ा काम है आपके लिए। देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं अभी जबलपुर का आपने जिक्र किया, जबलपुर में मैं ट्रेन में बैठा, फर्स्ट एसी का डब्बा था ट्रेन में। ट्रेन में क्यों आप डर क्यों रहे हो, मंत्री भी ट्रेन में बैठते नहीं क्या? मैं तो भाई जी साइकिल वाला आदमी हूं, साइकिल में भी जाऊं, ट्रेन में बैठूं घड़ी घड़ी। ट्रेन में बैठा, रात के 11:30 बजे का टाइम, पंखा वहां चल रहा था, हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया किसी को, 4 की सीट थी। एक कोई यात्री आया, उसने क्या किया कि पंखा बंद कर दिया। एक उसी में ही एक इन्वायरमेंट है जी, देखना एक इन्वायरमेंट है। एक उसमें सह यात्री कोई उठा, उसने कहा हु आर यू, ये पंखा बंद क्यों किया? उसकी मेंटालिटी में पढ़ रहा था, आदमी चेंज को रेजिस्ट करता है जी, ध्यान रखना। वहां फर्स्ट एसी का डब्बा, एसी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, और कोई पंखा बंद कर रहा है, तो एक सह यात्री उठ करके उसका विरोध करना इतना जबरदस्त
कि क्यों है, कौन हो तुम, मैं भी सह यात्री हूं, मैंने भी रेलवे को पैसा दिया है, और झगड़ा हो गया। तो ये तो बड़ा चेंज है जी, वो तो खाली पंखा ही बंद किया था। अगर पंखा नहीं चल रहा होता और फिर कोई आता तो कोई कुछ नहीं कहता जी, ये चलते हुए को किसने बंद कर दिया। तो आपके कई आदमी कह रहे हैं जी ये सेल परचेज को चलते हुए किसने बंद कर दिया, कौन ला रहा सप्लाई, ध्यान आ रहा है ना, सेल परचेज बंद हो गया, अब उसकी जगह क्या आ गया, सप्लाई। और सप्लाई को आएगा, वो कौन ला रहा है सप्लाई, ये है, ये रजिस्ट होगा। तो इस चेंजिंग सिनेरियो में आपकी ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। आप खुद को समझने के लिए, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग, ट्रेडर्स, सर्विस सेक्टर के लोग, उनको समझाने के लिए आपका समझना जरूरी है। और साथ में समाज के लोग ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं है जीएसटी से, वो भी कहे क्यों आ रहा है जीएसटी, उनको समझाने की जरूरत है। जीएसटी इसलिए आ रहा है, एक उदाहरण देता हूं आपको, एक उदाहरण। अभी नितिन गडकरी साहब ने एक अभी कॉन्फ्रेंस की, कितना टाइम है अभी, है अभी, नहीं मुझे मेरी प्लेन का टाइम पूछ रहा हूं। एक अभी नितिन गडकरी जी ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, लॉजिस्टिक में ये आते हैं आपका ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस, और ये लॉजिस्टिक में आते हैं। वहां एक जो कीनोट स्पीकर आई थी, लेडी कनाडा से थी, वो क्या बोली, उसने कहा इंडिया में लॉजिस्टिक चार्जेज पता है कितने आते हैं, 13.5%, और यूएस और कनाडा में कितने आते हैं, 8%। तो आप देखिए हर बिजनेस में लॉजिस्टिक कहीं ना कहीं काम आता है ना। और जब लॉजिस्टिक चार्जेज एक जगह 8% आ रहे हैं, एक जगह 13.5% आ रहे हैं, तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं, उसमें तो नहीं जी रहे हैं ना। तो हमें ये लेवल प्लेइंग फील्ड देना ही पड़ेगा। हम WTO एरा में जी रहे हैं, हम कोई पहली कंट्री नहीं है जो जीएसटी लागू कर रही है। पता है कितने देशों में लागू हो गया जीएसटी, पता है कितने देशों में, मैं कोई आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूं, आपका ट्रेनिंग का पार्ट है ना, इसलिए कह रहा हूं, कितने देशों में लागू हो गया है? हाँ ठीक बोल रहे हो, नजदीक बोल रहे हो, कितना, नहीं नजदीक 160, आगे कुछ कह रहे थे। यस, आपका क्या नाम है? रितेश गवांडे के नाम पे जोरदार ताली तो बजाइए आप। लेटर स्पीकर के साथ बैठे हैं, यही है ट्रेनिंग में अटेंटिव रहना। 165 देशों में जीएसटी लागू हो गया है। सबसे पहले किस कंट्री ने लागू किया? फ्रांस। ये तो ठीक है, बहुत जोरदार ताली बजाइए। अच्छे पार्टिसिपेंट है आपकी। कई जगह पूछता हूं, नहीं पकड़ में आता है। तो जब इतने 165 देशों में जीएसटी लागू हो गया कि इंडिया अलग रहेगा? फिर भी इंडिया ने अपने ढंग से, कुछ लोग क्या कहते हैं ऐसे ही, पढ़ते नहीं कुछ, और महंगाई बढ़ेगी। अरे किसने कहा बढ़ेगी? इसलिए वो कह रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि साहब जिस कंट्री में जीएसटी लगा ना, वो दोबारा वो पार्टी जीत के नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है नहीं जीत के? ये भी कह रहे हैं कि ऐसे। मैं इसलिए कह रहा हूं, ट्रेन में मैं मिलता हूं ना, तो बोला आप जीएसटी पे बहुत बोलते हो। हाँ, मैं बोलता हूं, तो मैं चर्चा करता हूं तो भाई बंधु आते हैं हमें, तो आपके पास भी आते होंगे। मैंने कहा जिन लोगों ने लागू किया और कोई सोचा नहीं ज्यादा, हमने जीएसटी को इंडियन कल्चर के हिसाब, इंडियन बिजनेस सिस्टम के अनुसार ढाला है। जहां लोगों ने लागू किया, किसी ने एक स्टैंडर्ड रेट रखी, किसी कंट्री ने 2 रखी, इससे ज्यादा रखी नहीं। और हर जगह जीएसटी लागू कर दिया, लागू होगा ही होगा आय बढ़ाने के लिए। तो अगर कोई आइटम किसी जमाने में किसी कंट्री में 11% पे था, स्टैंडर्ड रेट रुकी 15% आई, तो 4% बढ़ गया, तो महंगाई बढ़नी थी ना। हमने चीजों को कैसे किया पता है? एग्रीकल्चर जिन्स जो है उसमें जीएसटी नील है, एग्जम्प्टेड है ना। किसान अगर अपने खेत में कोई अपने और अपने मेहनत से कोई आइटम उगाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा।
चाहे वो अनाज उगावे चाहे फ्रूट्स उगावे, नहीं लगेगा, एग्जम्प्टेड। फिर हमने एक स्लैब रखी 5%। ऐसे ये 4 स्लैब वाला जीएसटी किसी कंट्री में ऐसा नहीं है जी, हमारे इंडियन सिस्टम के अनुसार है। 5% रखी, फिर हमने एक स्लैब रखी 12%, फिर हमने रखी 18%, फिर रखी हमने 28%, और फिर उसके ऊपर हमने सेसेज भी रख दिए। उसमें हमने कुछ बैड आइटम जीएसटी के, सिन गुड जिसको बोलते हैं, कौन कौन से हैं सिन गुड पता है? हाँ, लग्जरी भी आ गया उसमें, कुछ आगे सिन में एक नाम आया था, क्या है, तंबाकू आया था ना, जर्दा तंबाकू, खावत कौन भेजी थे? तो आज छोड़ देना इसको, ये हमने जीएसटी में भी सिन गुड में रखा है। कोई आपके पास आवे ना, कोई तंबाकू में कम रखो, बीड़ी में, पीते ही क्यों यार, छोड़ो ना, ये भी एक सामाजिक काम है। उसको सिन गुड रख दिया, उसमें हमने हाई कर दिया। ऐसे करके हमने सिस्टम को इंडियन बिजनेस सिस्टम के अनुसार उसको ढाला है। और हम जिन राज्यों को हम कंपनसेशन देंगे, हमारे बजट से नहीं देंगे जी, जिन राज्यों को हम कंपनसेशन देने वाले हैं हमने सेसेस लगाए हैं, वो सेसेस 28% से जो ऊपर स्लैब है उसमें जाएगा और हाईएस्ट 40% तक जा सकता है। तो जो सेसेस से इनकम होगी उसका एक कॉर्पस बनेगा, एक पूल बनेगा। उस पूल में से जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, जिसमें हम 4 राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात, ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। इनको अगर बाय द वे नुकसान हुआ, वैसे होगा नहीं, मुझे नहीं लगता होगा, तो हमारा बजट से हम नहीं देंगे। हमने उसके लिए कंपनसेशन बिल पास किया है, जो 28% से ऊपर जो सेसेस लगेंगे उसका जो पूल और कॉर्पस बनेगा उसी में से देंगे। इससे बढ़िया सिस्टम और जीएसटी क्या हो सकता है जी? बजट को हम नहीं छेड़ रहे हैं, राज्यों को राजी कर रहे हैं, समझा समझा करके रूल बना रहे हैं। अभी रूल को बना करके हमने ड्राफ्ट रूल अपलोड किए हैं। आपको कह रहा हूं कि आप भी ड्राफ्ट रूल देख करके उसमें जो सुझाव देना चाहते हैं दीजिए, हम उसको सुधार करने के लिए तैयार हैं, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम जो देश हित में हैं ऐसा हम जीएसटी बनाने के लिए तैयार हैं। तो आप तैयार हो या नहीं है? तैयार हो ना? तो अब एक मोदी जी नारा दे रहे हैं, वो मैंने वहीं अभी डिजिटल इंडिया में भी कहा कि अभी एक किसी बैंक ने मुझे एक टैबलेट दिखाया, उसने कहा जब अंगूठा लगेगा ना तो उससे एक खाता खुल जाएगा। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा खाता खोलना है, आप अंगूठा लगाएंगे, आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, आपका खाता खुल जाएगा, आपकी परिवार की पूरी डिटेल आ जाएगी, आप कितने भाई बहन हो, क्या बिजनेस करते हो, क्या क्या कहां रहते हो, सारा आ जाएगा। और आने वाले समय में अगर किसी की बैलेंस शीट डिजिटली ट्रांजैक्शन ठीक हो गई तो वो ये फोन करेगी बैंक को कि हमें 5 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक मैनेजर कहेगा रुकिए, आप इसको होल्ड करिए। वो अपने दूसरे सिस्टम पे, चाहे कंप्यूटर पे चाहे दूसरे मोबाइल पे, कहेगा इसकी बैलेंस शीट कैसी है, और वो देखेगा कि नहीं इसकी बैलेंस शीट में 5 लाख का लोन दिया जा सकता है, तो वो कहेगा कि आप अपना फ़ोन रखिए, हम आपको अभी आधे घंटे में 5 लाख का लोन मंजूर कर देते हैं। आपको सिस्टम पसंद है या नहीं है? ये कल्पना नहीं है जी, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जब डिजिटल ट्रांजैक्शन हमने शुरू किया, पेट्रोलियम सेक्टर का एक उदाहरण लीजिए। ऐसा नहीं है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पहले था नहीं पेट्रोलियम सेक्टर में, आप लोग तेल भराते थे, कई कार्ड से भराते थे, 17% था। 17% से 8 नवंबर को 17%, और आज की तारीख में 77%। कितना जंप आया है जी, कितना जंप आया है। ये ताकत है हमारे देश की कि मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो जीएसटी भी उसी कड़ी में एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बिजनेस करना आसान हो जाएगा, राज्यों की ताकत बढ़ेगी, केंद्र की ताकत बढ़ेगी, टैक्स नेट बढ़ेगा, और जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो जो हमने सपना सोचा है 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो, सबके ऊपर छत हो, गरीब और अमीर की खाई कम हो जाए, ये सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में आपने मुझे बुलाया, स्वागत भी किया,
अभिनंदन भी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। We'll present a memento to President, sir. I request staff to please bring the memento. I would request CA Nitish Kothari, Chairman of Vasai Branch, to offer a memento to Honorable President CA Nilesh Vikamsi, sir, for his presence immediately. Now I would request CA Xavier Rajan, sir, Secretary Vasai Branch, to offer a formal vote of thanks. Friends, our Minister of State for Finance, Corporate Affairs has come to this conference. He has devoted his time and he has given a lot of knowledge to us. Sir, you have respected us, you have respected our institute, and you have respected our leaders. Thank you very much, sir, for your love and affection to us. Thank you. Please, members, please give a standing ovation. Please give a standing ovation. CA Nilesh Vikamshi is very much, I express my sincere thanks to CA Nilesh Vikamshi. Thank you very much.